دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ فرینڈز، ہم پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں عادل اس مصیبت سے کیسے نجات پائے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب روائی چینل میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ریاکشن ود دعا بٹن کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کے 3 بجے میں غیر ارادی طور پر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھسائی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں پریشان ہو گیا اور پھر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر محتاط انداز میں چلتا ہوا عادل کے کمرے کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اس کی آواز آئی، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو یہی صحیح۔ کچھ دیر بعد عادل کی آواز آئی، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو یہی صحیح، لیکن میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ عادل کی ذہنی سطح پر ویسی ہی ہو گئی ہے جیسی اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے تھی۔ پھر لائٹ آف ہو گئی۔ میں نے احتیاط سے عادل کے کمرے کے اندر جھانکا۔ زیرو کا سرخ بلب کمرے میں روشن تھا اور عادل بستر پر لیٹ چکا تھا۔ میں احتیاط سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر بیڈ پر لیٹنے کے بعد عادل کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے پھر ہسپتال میں داخل کرایا جائے اور یہ بات میرے لیے افسوس اور دکھ کا باعث تھی۔ صبح میں امی اور ابو کو عادل کے بارے میں بتانے کے بعد آفس چلا گیا۔ وہاں دوپہر کے قریب مجھے ابو کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ عادل نے تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی ہے اور اسے ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس پر پرائیویٹ ہسپتال کا نام بھی بتایا جس میں عادل کو داخل کیا گیا تھا۔ وہ ہمارے دور کے رشتے دار ڈاکٹر احمد کا ہسپتال تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں میں نے عادل کی حالت دیکھی۔ وہ خاصی حد تک جل چکا تھا۔ میں رو پڑا۔ امی، ابو اور ڈاکٹر احمد دیگر لوگوں نے مجھے تسلی دی۔ مجھے ڈاکٹر احمد واسطی نے بتایا کہ عادل کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کچھ مطمئن ہو گیا۔ پھر میں نے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے دوست بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ وہ مجھے امی اور ابو کو تسلیاں دے رہے تھے۔ پھر ایک دوست تیمور نے مجھ سے کہا، کامران، میں تم سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ایک طرف آ گیا اور بولا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے دل میں شروع سے ہی ایک بات تھی لیکن وہ میں نے تم سے نہیں کہی۔ کہیں تو ایسی باتوں پر یقین نہ کرتے ہو، لیکن آج میں وہ بات تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ تیمور نے کہا، ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کیا تم اثرات اور اسیب وغیرہ پر یقین رکھتے ہو؟ جنات پر یقین رکھتا ہوں، اس کی گواہی تو قرآن پاک نے بھی دی ہے۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ عادل کے ساتھ جنات وغیرہ کا ہی کوئی معاملہ ہے۔ تیمور نے کہا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے بھی کئی مرتبہ اس کے بارے میں سوچا ہے، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ شاید عادل کا ذہنی توازن کا کوئی مسئلہ ہو۔ ادھر نفسیاتی ڈاکٹر کے علاج سے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا تھا، لیکن جب وہ ہسپتال سے گھر آیا تو اس کی حالت پھر پہلے جیسی ہو گئی۔ وہ پھر رات کو کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کون نظر آتا ہے، جنات ہی ہوں گے یا پھر کوئی شیطانی مخلوق۔ تیمور نے خیال ظاہر کیا۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ میں نے کہا، عادل کا روحانی علاج کرواؤ۔ وہ بولا، کس سے؟ کسی بھی اچھے روحانی عامل سے۔ آج کل اچھی روحانی عامل کہاں ملتے ہیں؟ یہاں تو قدم قدم پر پیسے بٹورنے والے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے۔ تیمور بولا، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ اچھا روحانی عامل ڈھونڈنا تو معمولی بات ہے۔ تمہاری نظر میں کوئی ہے؟ ایک صاحب ہیں، بہت اچھے روحانی عامل ہیں، بہت نام سنا ہے ان کا۔ تیمور نے کہا، تم جانتے ہو؟ اگر تم مجھے ایڈریس بتا دو، جب عادل ہسپتال سے ڈسچارج ہوگا تو اسے بلا لیں گے۔ میں نے کہا اور تیمور نے مجھے ایڈریس سمجھا دیا۔ 1 ہفتے بعد عادل کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کا منہ جلنے سے بچ گیا تھا، جبکہ ٹانگوں اور پیٹ کا کچھ حصہ جل چکا تھا۔ بہرحال اب اس کی حالت خاصی بہتر تھی۔ جس دن اسے گھر لایا گیا، میں اس دن تیمور نے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ ان عامل کے آستانے پر پہنچ کر میں نے انہیں سارے حالات سے آگاہ کیا اور وہ میرے اصرار پر اسی وقت میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ وہ شام کا وقت تھا جب میں ان عامل اور ان کے شاگرد کو لے کر گھر پہنچا اور انہیں سیدھا عادل کے کمرے میں لے آیا۔ انہوں نے عادل کی حالت دیکھی اور بولے، یہ کام تو بے حد کھٹن ہے۔ عادل پر ایک جن کا سایہ ہے جو کہ بہت طاقتور ہے، خرچہ بھی بہت ہوگا۔ ہاں ہاں، آپ جتنا کہیں گے ہم لوگ اتنا ہی خرچہ کرنے کو تیار ہیں، بس آپ ایک بار میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے، میں عمل شروع کرتا ہوں، آپ لوگ باہر چلے جائیں اور دروازہ بند کر دیں۔ ہم لوگ یعنی ابو اور میں باہر برآمدے میں آ گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ عادل کمرے میں ہی تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عادل کی ایک چیخ سنائی دی۔ ابو اور میں اچھل پڑے
अम्मी भी परेशान हो गई, लेकिन क्योंकि आमिल को हदैयत थी कि चाहे जो भी हो सुबह से पहले कमरे में कोई न आए, इसलिए हम लोग खामोश बैठे रहे। वक्तन वक्तन आदल की चीखें बुलंद होती रही। रात के 10 बज के यकायक यूं लगा जैसे आदल वाले कमरे में भूचाल आ गया हो। उठक पटक की आवाजें यूं आ रही थी जैसे कमरे के एक एक सामान को उठाकर फर्श पर फेंका जा रहा हो। तकरीबन 15 मिनट बाद आदल की चीख के अलावा और भी चीखें उभरने लगी। यकीनन ये अमल और इसके शागिर्द की चीखें थी, क्योंकि कमरे में इन तीनों के अलावा और कोई भी ना था। थोड़ी देर बाद एक धमाके से आदल के कमरे का दरवाजा खुला और आदल भागता हुआ बाहर आया और अब्बू से लिपट गया। इसके पीछे पीछे आमिल भी बाहर आ गया था। आमिल के सर से खून बह रहा था, जो कि इसके सारे चेहरे को तर कर चुका था, और वो लंगड़ा कर चलता हुआ बाहर आ गया। उस वक्त इसकी शक्ल बेहद खौफनाक लग रही थी। आदल रोता हुआ अब्बू के सीने से लगा हुआ था। जनाब, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप किसी और अमल का इंतजाम करें। जिन बहुत ताकतवर है। मेरा शागिर्द इसकी मार खाकर बेहोश हो चुका है, और मेरी देखें इसने क्या हालत कर दी है। आमल अपने चेहरे की तरफ इशारा करता हुआ बोला। अब्बू, मैं और अम्मी हैरान थे कि इनके साथ हुआ क्या है। आमिल ने उसी वक्त दोबारा कमरे में दाखिल होकर अपने बेहोश शागिर्द पर पानी छिड़का। इसके होश में आते ही वो इसे लेकर वहाँ से चला गया। जाते जाते वो मुझे एक और आमिल का पता दे गया कि ये वो आमिल ही इस मसले का हल कर सकता है। हम लोग भी तक इसके रवैये पर हैरान थे। आदल से पूछा कि क्या हुआ था, तो इसने बताया कि ये दोनों आदमी फर्श पर अलती पलती मारकर बैठे गए। आमिल ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका और फिर कुछ देर बाद शागिर्द को इशारा किया तो वो उठकर मुझे थप्पड़ मारने लगा। मैं रोने लगा, लेकिन आमिल ने कहा कि मारता रह, ये थप्पड़ मुझे नहीं जिनको लग रहे हैं। लेकिन अब्बू, सच बात तो ये है कि वो थप्पड़ मुझे लग रहे थे। जब इसका शागिर्द मार मार कर थक गया तो आमिल ने कुछ और पढ़ा। कमरे में धुआं फैल गया और वो लोग यूं जमीन से बुलंद होकर दोबारा जमीन पर गिरने लगे, जैसे इन्हें कोई उठा कर फेंक रहा हो। मैं भागकर बाहर निकल आया। आदल ने बताया कि वो बेहद खौफजदा था। गौर से देखने पर हमें इसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान दिखाई दिए। अब्बू और अम्मी ने आमिल को बहुत कोसा, और मुझे भी, क्योंकि इसी में मैं ही लाया था। खैर 3-4 दिन तो आराम से गुजर गए। मैं रोजाना आदल के कमरे की रात के वक्त सुन गिन लेता, लेकिन इसकी बातों की आवाज ना आती। एक दिन मैं रात को 2:30 बजे के करीब खिड़की के पास खड़ा था कि मुझे आदल की बातों की आवाज सुनाई दी। मैं तेजी से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर आदल के कमरे की तरफ आया। इसकी बातों की आवाजें अब आ रही थी। मैं इस आमर जिनसे आज वो 2-2 हाथ करने का फैसला कर चुका था। मैंने आदल के कमरे का दरवाजा पिछाया। उसी वक्त बातों की आवाज आना बंद हो गई और कुछ देर बाद आदल ने दरवाजा खोल दिया। मैं उसे सामने से हटाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। कहाँ है वो? मैं आज इसे सबक सिखाऊंगा कि तमाम उम्र याद रखेगा। मैंने कहा। भाई, जैसे ही आपने दरवाजा बजाया वो चला गया। आदल बोला, ठीक है, अब इसका कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करूंगा कि मैंने बात अधूरी छोड़ी और कमरे से निकल आया। उसी वक्त अब्बू और अम्मी आदल के कमरे की तरफ आते दिखाई दिए। क्या हुआ? ये शोर कैसा था? अब्बू ने पूछा। अम्मी तेजी से आगे बढ़कर आदल के जिस्म पर हाथ फेरने और सुलाने लगी। इसका मुंह चूमने लगी। कुछ नहीं अब्बू जी, आमिल का ड्रेस इस आमिल ने बताया था। सुबह मैं इसे लाजमी लेकर आऊंगा। मैंने कहा, क्यों? अब्बू बोले, वो उल्लू का पट्टा आज फिर आदल से बातें कर रहा था। मैंने कहा, ओहो। अब्बू ने कहा, नहीं भाई, वो लोग बहुत मारते हैं। आदल ने डर कर खौफजदा लहजे में कहा, नहीं, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा और इन लोगों को हैरान परेशान छोड़कर अपने कमरे में आ गया। वो रात मेरे जागते ही गुजरी। दूसरे दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी की और आमिल के बताए हुए एड्रेस पर दूसरे आमिल को ढूंढने चला गया। मुझे यकीन था कि आमिल ने अगर ड्रेस दिया है तो अपने से किसी बहुत अच्छे आमिल का दिया होगा, जिसके बारे में इसे यकीन हो कि वो इस मसले का हल कर सकेगा। ढूंढते ढूंढते आखिरकार मैं इस आमिल के घर पहुंच ही गया। मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया गया और कुछ ही देर बाद आमिल बाबा तशरीफ ले आए। पहली नजर में देखते ही मुझे इनके चेहरे पर नूर उभरता हुआ दिखाई दिया। वो एक उम्र सीधा आदमी थे। चेहरे पर सफेद दाढ़ी इनकी शख्सियत को मजीद रोबदार बना रही थी। सफेद रंग का जोड़ा उन्होंने जेब तन कर रखा था। मुझसे बहुत ही अच्छी तरह मिले, चाय वगैरह पिलाई। मैंने इन्हें सारे मसले के बारे में बताया और इस आमिल के बारे में भी। यकीनन वो जिन बहुत ताकतवर होगा, वरना वो आमिल भी अच्छा खासा इल्म जानता है। बहरहाल मैं आपके साथ चलने पर तैयार हूँ। आप बैठे, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। मैं इनके इखलाक से बहुत खुश था। न जाने क्यों इनको देखते ही मुझे महसूस हुआ कि ये वही मेरा मसला हल कर सकते हैं।
बहरहाल कुछ ही देर बाद मैं इन आमिल बाबा के साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर की तरफ सफर करने लगा। जिस वक्त हम घर पहुंचे उसी वक्त 2 बजने वाले थे। लंच टाइम था। अम्मी ने खाना लगा दिया था। अब्बू ने भी इस दिन ऑफिस से छुट्टी की थी। हमने इनके साथ ही खाना खाया। खाने के दौरान रूहानियत पर ही गुफ्तगू चलती रही। अब्बू भी इन आमिल बाबा से मिलकर बहुत खुश हुए। खाना खाने के बाद हमने इन्हें कहा कि वो कुछ देर आराम कर ले, बेशक शाम को काम शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि जो कुछ यहाँ आकर मैंने देखा है इसके मुताबिक तो अमर रात को करना होगा। मैंने गलती की जो इतनी जल्दी यहाँ आ गया। मैंने घर में भी अभी बहुत से काम करने थे। खैर जो हुआ सो हुआ। ये तवीज आप आदल के बाजू पर बांध दे, रात को अमल शुरू करेंगे। उन्होंने जेब से एक तवीज निकाल कर इनके हवाले कर दिया। अब्बू ने तवीज मुझे दिया और मैंने आदल के बाजू पर वो तवीज बांध दिया। रात के वक्त खाने से फारिग होकर 10 बजे के करीब अमल बाबा, मैं और अब्बू आदल के कमरे में आए। हम लोग आमिल बाबा के साथ क्लीन पर बैठ के आमिल बाबा ने आस्ता आवाज में कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। फिर उन्होंने रोशनदान की तरफ और खिड़की की तरफ देखा और मुझसे बोले लाइट ऑफ कर दो और दरवाजा भी बंद कर दो, खिड़की भी। मैंने इनकी हिदायत पर अमल किया। कमरे में नीम अंधेरा फैल चुका था। फिर अचानक कोई अजीबो गरीब सी रोशनदान से कमरे में दाखिल हुई और आमिल बाबा के दाएं जानब क्लीन पर बैठ गई। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? आमिल बाबा ने इससे कहा। मेरा नाम चंदर चोर है, इस चीज ने जवाब दिया। कितनी उम्र है तेरी? जी तकरीबन 600 साल। आमिल बाबा ने हंकारा भरा। आदिल को क्यों तंग कर रहा है? अब मुझे समझ आया कि रोशनदान से आने वाला जिन है। इसने कहा आदिल से मेरी दोस्ती पैराडाइज पॉइंट पर हुई थी। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे और इसने तुम्हारी बात ना मानी तो तुमने इसे आग लगा दी। आमिल बाबा गजबनाक लहजे में बोले। मुझे गुस्सा आया था। वो मेरे साथ जाने से मुसलसल इनकार कर रहा था। क्यों, क्या वो तुम्हारे बाप का मुलाजिम है जो तुम्हारे हुक्म माने? अब भी आमिल बाबा के लहजे में गरज थी। ये मेरा दोस्त है इसलिए इसे मेरे साथ रहना चाहिए। जिन बोला अब तो तुम मेरे साथ रहोगे। आमिल बाबा ने कहा ये नहीं हो सकता। जिन ने कहा कैसे नहीं हो सकता? तुमने आदिल के अलावा न जाने किस किस को तंग किया होगा। अब मैं तुम्हें अपने पास बंद करके रखूंगा। आमिल बाबा बोले तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिन ने सख्त लहजे में कहा ये तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं। आमिल बाबा ने कहा। फिर इनके बड़बड़ाने की आवाज बुलंद होने लगी। उन्होंने जिन पर फूंक मारी तो वो इतने जोर से चीखा कि मुझे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। कुछ देर बाद खामोशी छा गई और आमिल बाबा ने जिन से कहा हाँ भाई, अब क्या हाल है? मुझे माफ कर दे। जिन गिड़गिड़ाया। पहले तुम आदिल से माफी मांगो। आमिल बाबा बोले आदिल मुझे माफ कर दो। जिन ने कहा अब इसके वालिद और भाई से माफी मांगो। आमिल बाबा ने कहा आप लोग मुझे माफ कर दे। जिन ने कहा ठीक है। आमिल बाबा बोले आप बताओ तुम्हारे क्या इरादा है? मैंने माफी मांग ली है और इसलिए मुझे जाने दिया जाए। जिन बोला। आमिल बाबा धीरे से हंसकर बोले ताकि तुम फिर आदिल को तंग करो। नहीं, अब मैं वादा करता हूँ कि इसे तंग नहीं करूँगा। जिन ने कहा इसे तो नहीं किसी और को तंग करोगे? आमिल बाबा बोले नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। जिन ने कहा मैं तुम्हारी बात पर इतबार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। आमिल बाबा बोले नहीं। जिन चीख पड़ा ऐसा ना करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों का बड़ा ख्याल है। आमिल बाबा बोले दूसरों को तंग करते हुए तुमने कभी सोचा नहीं कि वो भी किसी के बच्चे होते हैं? मैं वादा करता हूँ कि अब किसी को तंग नहीं करूँगा। जिन गिड़गिड़ाया। मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने पास कैद भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बच्चों का एहसास है। मैं तुम्हें कैद तो नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल तुम्हें अपने काबू में जरूर रखूंगा ताकि तुम आइंदा किसी को निशाना ना बना सको। आमिल बाबा ने कहा मैं आपकी गुलामी में रहने के लिए तैयार हूँ। जिन बोला। आमिल बाबा ने कुछ बड़बड़ाकर जिन पर फूंक मारी और इससे बोला जाओ, अब तुम हमेशा मेरे काबू में रहोगे। अगर तुमने अब कोई शरारत की तो याद रखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा। मैं अब कोई शरारत नहीं करूंगा जनाब। जिन ने कहा। फिर वो जिस तरह रोशनदान से आया था उसी तरह वापस चला गया। आमिल बाबा बोले कामरान अब लाइट जला दो। मैंने उठकर बटन दबा दिया। ट्यूबलाइट रोशन हो गई। आमिल बाबा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर बोले अब आप लोग बेफिक्र रहें, वो जिन हमेशा मेरी गुलामी में रहेगा और अब किसी को तंग करने की जरूरत नहीं करेगा। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब्बू ने कहा नहीं, एहसान की कोई बात नहीं। दुखी इंसानियत को परेशानी से निजात दिलाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। आमिल बाबा ने कहा। आदिल के चेहरे पर भी अब सुकून था। इसने भी आमिल बाबा का शुक्रिया अदा किया। अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर वो आमिल बाबा ना मिलते तो जिन ना जाने आदिल का क्या हशर करता। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आइए आप और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो पाक ज़ात हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। के साथ ही मुझे दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।